Okay, so we are learning. Hello, students. This is Manmeet from English Hub, and we are learning how to write a report. Yes, this is a report writing. First of all, you have to understand one thing very clearly, that report is always written in the past tense. Then, the second thing, if you have seen a newspaper, okay, in the newspapers, whenever you see news headlines, headlines are always written in capital letters, block letters. Block and capital means the same, and in simple present tense. Then there should be a byline, and if you want, you can also write staff reporter. If you don't write staff reporter, no marks will be deducted. That's okay. Then you write the place. If it is not for your school magazine, then you will write the date, okay, and the place. But if it is for your school magazine, then you don't have to include the place and the date over here. Okay, now let's start. Recently, and you can see that I have started it with the same line, okay? I have not changed the line. So please don't do this mistake. If you change the line, then the marks will be deducted. पहला पॉइंट, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है. दूसरा पॉइंट, हेडलाइन. आप न्यूज़पेपर्स में भी देखते हो, हेडलाइंस हमेशा एक तो कैपिटल में होती है और दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. बाय लाइन लिखना कंपलसरी है. ये आपकी मर्जी है, आप ब्रैकेट में स्टाफ रिपोर्टर लिखना चाहते हो या नहीं. देन यहाँ पर आपका प्लेस और डेट आता है. कुछ स्कूल्स में ये भी ऑप्शनल होता है. अगर आप इसको लिखते भी हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, मगर सेम लाइन से ही आपको रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करना है. Recently, low-lying areas of Kailash Colony experienced the worst downpour. अब मैंने rainfall, heavy rainfall के लिए synonym word use किया downpour for 5 days, which resulted in a massive flood. Okay? Which devastated everything. यहाँ पर अब मैंने जानबूझ के एक डिफिकल्ट वर्ड डाला है. आप चाहे तो deteriorated वर्ड भी यूज कर सकते हो, which deteriorated everything around. Next line. The people suffered heavy losses of life and property. अब लोग भी मरे और प्रॉपर्टी भी बहुत डैमेज हुई. The streets and colonies were submerged in water. अब the NDRF rescue teams reached the affected areas in time. अब मैंने बताया कि ये लोग जो है टाइम पर पहुंच गए और ये लोग with food and medicines लेकर टाइम पर पहुंच गए. The maroon people, जितने भी लोग है ना destitutes थे या maroon थे, दुखी थे या जिन्होंने ये सफर किया, suffered people, उन सब लोगों को were taken to safer places. उनको safe places पे ले जाया गया. Many local NGOs gave a hand in rescuing people and provided them shelter, food and medicine. Providing की जगह provided होना चाहिए, ठीक है? The local government announced a compensation of ₹20,000 to the victims. एक compensation amount भी government देती है जब भी इस तरह की calamity आ जाए, ठीक है? The reconstruction work, और reconstruction work भी गवर्नमेंट ने जल्दी जल्दी शुरू कर दिया फ्लड के खत्म होते ही. अब सबसे बड़ी बात ये है कि दिस इज द 10 मार्क्स क्वेश्चन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 2 पेजेस लिखना बहुत बहुत जरूरी है. तो अगर आप सारे पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे तो शायद आप एक पेज लिख पाओ. ओके, सो अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप याद कर लो बिल्कुल. एक तो जो नॉर्मल लाइफ होती है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, ये आप लिख सकते हो, है ना. द एंटायर नेशन हैज कम फॉरवर्ड टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू द पटना फ्लड विक्टिम्स. ये किसी के लिए भी आप बोलोगे तो इट विल हेल्प यू. इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है many people and animals, many people and animals died due to these floods. अब इन floods में लोग भी मरे और animals भी मरे. According to the government, around या approximately एक number दे दो, 370 people
have lost their lives till now. अभी तक की काउंटिंग के हिसाब से आप बता दो कि 370 लोग, ठीक है, मर चुके हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, इज ट्राइंग टू क्लियर द डेड बॉडीज। अब जो डेड बॉडीज है वो जो पानी में बह रही है, एनिमल्स की, इंसानों की, उसको क्लियर भी तो करने का काम गवर्नमेंट का है। क्यों करना जरूरी है? बिकॉज इट कैन कॉज एन आउटब्रेक ऑफ मेनी डिजीजेस। उसकी वजह से काफी डिजीजेस भी आउटब्रेक हो सकते हैं। अगर डेड बॉडी 4-5 साल सड़ती रहेगी, 4-5 दिन, तो बीमारियां लग जाएंगी ना। Many doctors have reached the refugee camps to help the destitute. और बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी, और यहाँ पर एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, वॉलंटरीली। वॉलंटरीली मतलब खुद से अपने आप आना, पैसों की वजह से नहीं। जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, उनको अगर गवर्नमेंट बोलेगी तुम्हें जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे। मगर बहुत सारे डॉक्टर्स और एनजीओज ने वॉलंटरीली यू नो वो रेफ्यूजी कैंप्स पहुंचे लोगों की मदद करने। So this is the way you can write a report in 250 words. Okay, I hope you understood. और आप एक चीज हमेशा याद रखिए रिपोर्ट लिखते हुए, रिपोर्ट हमेशा थर्ड पर्सन में होती है, पास्ट टेंस में होती है, और आप अपने सजेशंस नहीं लिख सकते, मुझे बहुत दुख हुआ ऐसा करके। नो, नथिंग एट ऑल। आप बस एक रिपोर्टर हैं जिसने रिपोर्ट किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यू कैनॉट डू एनीथिंग about it. You cannot write your own suggestions at all in the report. This is the report. It's not a letter to the editor जिसमें आप अपने किसी भी तरह के suggestions लिखें। Thank you for watching this video. I hope it helps.